Hello students, welcome to today's video class, and in today's video class we are going to cover the remaining part of lesson 1, that is knowing our numbers, and it is the part 3 of this chapter. In this video class what we will cover, let's see. So you can see that all the topics that we have to learn in this lesson is mentioned over here. And we already have covered these topics, that is what is natural number and whole number, what is digits and numeral, what is notation and numeration, what are different methods of numeration, Indian system and international system of numeration, plus how we will read and write the numbers according to both the systems. Also we have understood what is place value and face value and what are the difference between them. Okay, we also have understood how to compare two numbers. What are the basic things we have to always take care when we are comparing two numbers. And also I explained how to estimate or round up the given numbers. So today we will discuss the last topic of this chapter, that is Roman numerals. So let's begin. So dear students, I am sure that you are aware of this topic, Roman numerals, and you already have learned in previous classes also that what Roman numerals means and how to write a number in Roman form. So let's take an example. As we already learned about Indian system of numeration, that whenever we write a number in Indian system of numeration, we use 10 digits. Even in the international system of enumeration, we use 10 digits. What are they? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So these are the 10 digits that are used to write a number in Indian system of numeration or international system of numeration. But when we are writing a number in Roman systems or say Roman numerals, we don't use these digits. So what are the symbols we use? Let's know that. So as I said, we use 10 symbols that we call them digits, but in Roman numerals we use 7 symbols. Okay, and those 7 symbols belongs to the English alphabet, which are I, B, X, L, C, D and N. ओके, तो ये 7 सिंबल्स हैं जो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से लिए हैं, और इन्हीं 7 सिंबल्स को यूज करके हम लोग किसी भी रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनका वैल्यूज क्या है। अगर इनको हम इस फॉर्म में लिखें, इंडियन सिस्टम में लिखें, तो इनका वैल्यू क्या होगा? ओके, तो इस i का मतलब होता है 1, मतलब अगर i लिखा हो तो उसको वैल्यू हम लोग 1 मानेंगे, और ये b का मतलब हो जाएगा 5, ये x का मतलब होगा 10, और L 50 के लिए यूज किया जाता है, C 100 के लिए, D 500 के लिए और M 1000। ठीक है, तो ये 7 सिंबल्स यूज होते हैं टू राइट अ नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, और इनके वैल्यूज ये है कि आपको ये हमेशा याद रखना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, M के बदले हम लोग K भी यूज कर सकते हैं, मतलब K लिखा हो या M, दोनों का मतलब हम लोग 1000 समझेंगे। ऑलराइट, अब हम लोग समझते हैं इसके जो रूल्स हैं। कभी भी किसी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो उन रूल्स को पहले समझ लें, तभी हम किसी रोमन न्यूमरल्स को प्रॉपर्ली और करेक्टली लिख पाएंगे। कुछ शुरू के कुछ रोमन न्यूमरल्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ताकि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आखिर रोमन न्यूमरल्स को लिखते कैसे हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लोग जिस लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, डिजिट्स, ये जो भी हमने पढ़ा, और इस सिस्टम में जो हम लोग नंबर रीड कर रहे थे उसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्हीं नंबर्स को अगर हम रोमन न्यूमरल्स में लिखना तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोमन न्यूमरल्स में। तो 1 के लिए हम एक बार आई लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि आई का वैल्यू 1 है। एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा था कि आपको बार बार रिलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये था 1, ये था 5, ये 10 था, ये 50, ये 100, 500, ये 100। तो 1 के लिए हम लोग आई लिखेंगे क्योंकि आई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब 2 के लिए क्या लिखेंगे? तो 2 के लिए हम लोग 2 टाइम्स आई लिखेंगे, 3 के लिए 3 टाइम्स आई, और 4 के लिए अब एक प्रॉब्लम आएगी, 4 अगर लिखना हो तो हम 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। जो रूल से अभी जिस रूल से अभी तक हम लोग नंबर लिख रहे हैं उस रूल से अगर लिखें तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 टाइम्स आई। लेकिन जो पहला रूल है हमारा, जो प्रीवियस में आपको डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे जो पहला रूल लिखा हुआ है, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। ठीक है, अगर किसी सिंबल्स को हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है जितना बार उसको रिपीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि हम लोग मैक्सिमम 3 टाइम्स से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्या समझे आप? जब आप किसी सिंबल को रिपीट करते हैं तो उसका वैल्यू ऐड होता रहता है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 के लिए हमने 1 लिख दिया, 2 के लिए 2 टाइम्स आई लिख दिया, 3 के लिए 3 टाइम्स आई लिख दिया, तो 3 हो गया। लेकिन 4 के लिए 4 टाइम्स हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ता है 5। अब 5 का क्या सिंबल होता है? देखिए 5 का सिंबल है V, तो V लिख देंगे, ये 5 हो जाएगा। लेकिन अब हम जैसे कि आपको बताया कि रिपीट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब रिपीट करेंगे तो ऐड होगा, यानी कि हम 3 टाइम्स से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, बट 1 टाइम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 टाइम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम ऐसे नहीं लिखकर 5 में से 1 अगर सबट्रैक्ट कर दें तो भी हमारा 4 हो जाता है, राइट? तो 4 के लिए क्या करेंगे? 5 लिखकर और फिर आई उसके पहले लिख देंगे। यानी कि अब हमको यहाँ पे सेकंड रूल का ध्यान रखना है। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol, अच्छा राइट में थर्ड वैल्यू, अभी थर्ड पर हम ध्यान देते हैं। if a symbol of smaller value is written to the left of the symbol of greater value, its value is subtracted। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बड़े सिंबल जैसे v क्या है? ग्रेटर वैल्यू है v का, ठीक है ना, और i का क्या है? स्मॉलर वैल्यू है। अगर i को हम लेफ्ट साइड में लिख दें, ये v के लेफ्ट साइड में i को लिख दें, तो ये i का जो वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू से सबट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5 और i स्मॉलर वैल्यू है 1, तो 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा? ये 4 आएगा। मतलब ये कि अगर हम i और v लिखते हैं तो उसको क्या रीड करेंगे? रोमन न्यूमरल्स में 4 रीड करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में ये थर्ड रूल ध्यान रखना पड़ेगा 4 लिखने के लिए। ऑलराइट, अब आगे हम लोग को 4 के बाद अगर लिखना हो तो क्या क्या करेंगे? तो 4 के बाद 5 के सिंबल्स है हमारे पास। अब 6 लिखा हो तो क्या करेंगे? तो 6 लिखने के लिए हम लोग v एक बार यूज करेंगे, तो 5 हो गया। और जैसा कि आपने फर्स्ट रूल में पढ़ा था कि अगर हम लोग किसी सिंबल्स को 2 बार लिखते हैं तो उनके वैल्यूज ऐड हो जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे v लिखा एक बार i लिख दिए तो v में i का वैल्यू ऐड हो गया, मतलब 5 में 1 का वैल्यू ऐड हो गया, तो ये हो गया 6। मतलब 6 के लिए हम लिखेंगे vi। सिमिलर 7 के लिए हम लिखेंगे vi i, क्योंकि हम लोग 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो 7 हो गया 5 + 1 + 1। 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? vi i 3 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हम 3 टाइम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। तो 5 + 1 + 1 + 1 = 8, तो ये 8 हो गया। अब 9 के लिए अगर हम 4 टाइम्स रिपीट करें, अब 9 लिखने के लिए हम 4 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो 4 टाइम रिपीट कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 को लिखने के लिए थर्ड रूल जो अभी हम यहाँ पे पढ़े थे
थर्ड रूल कि अगर सिंबल को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं किसी ग्रेटर सिंबल के, तो हम लोग उसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट मतलब उसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 10 के लिए हम लोग के पास सिंबल आ देख सकते हैं यहाँ पे x, ठीक है, 10 के लिए x आ गया। अब 9 हम लोग इसी की हेल्प से लिखते हैं, क्या करेंगे हम लोग ये न लिखकर x लिखकर ऐसे 1 माइनस कर लेंगे। अब 1 माइनस करने के लिए 1 का जो सिंबल है उसको x के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 9। ऑलराइट, तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे किसी नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बात आपने सीखा कि अगर किसी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू ऐड होता है। जैसे i को हमने रिपीट किया 2 टाइम्स तो 1 + 1 2 हो गया, 3 टाइम्स रिपीट किया तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। दूसरी बात आपने सीखी कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के पहले अगर कोई सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर सिंबल से पहले उससे लोअर सिंबल यूज करते हैं तो वो वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑलराइट, ये 2 बात आपने सीख लिया। अब हम लोग समझते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? तो ये सेकंड रूल वही है जो हम लोग का फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल में जैसे रिपीट हो रहा था तो सेम ही चीज रिपीट हो रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा है, एक कोई ग्रेटर वैल्यू ले रहा है और फिर उसके बाद कोई भी स्मॉलर वैल्यू हम उसके आगे अगर लिख रहे हैं राइट साइड में तो उसका वैल्यू इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे ये v5 है, अब इसके राइट साइड में हमने एक बार i लिखा और फिर उसके राइट साइड में एक बार i लिखा, तो इस v में मतलब 5 में ये 1 ऐड होता है। ठीक है, तो ये 3 रूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से रोमन न्यूमरल्स लिख पाएंगे, लेकिन ज्यादा ग्रेटर नंबर को नहीं लिख पाएंगे, स्मॉलर नंबर तक ही लिख पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग को कुछ और रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग 4 नंबर को समझते हैं। 4th नंबर को, 4th नंबर रूल ये कहता है कि द सिंबल्स b, l and d आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, मतलब कि क्या है, जैसे कोई बड़ा सा नंबर होगा तो लिखना 45, ये थोड़ा सा ग्रेटर नंबर है अब तक जो मैंने लिखा उसमें से, और 45 को लिखने के लिए हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं bl। और bl मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सेकंड रूल कहता है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू लिख देंगे तो उसका मतलब होगा कि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 50 - 5 45 तो हो जा रहा है, तो 45 को हम लोग ऐसे लिख देना चाहिए था, बट हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये हमारा 4th रूल क्या है? 4th रूल क्या कह रहा है कि कभी भी हम b और l और d को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। तो फिर 45 को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो 45 को लिखने के लिए हम लोग 40 को लिखेंगे और 5 का क्या होता है b होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 40 लिखकर और फिर b लिख देंगे तो 45 हो जाएगा। अब 40 कैसे लिखेंगे? तो देखिए 40 आपको पता है कि x का वैल्यू 10 होता है, तो अगर हम इसको 4 टाइम रिपीट करेंगे तो 40 तो हो जाएगा, बट ये हमारा जो रूल्स है उसको वायलेट कर देगा। ठीक है ना, हमारे रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये हम नहीं करेंगे। तो हम फिर सेकंड रूल यूज कर सकते हैं या थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू से पहले तो स्मॉलर वैल्यू को लिखा जाए तो उसका वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब ये हमारा ग्रेटर वैल्यू है 50 और ये हमारा स्मॉलर वैल्यू है 10। अब 10 को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 50 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 40। मतलब अगर हम 40 लिखना चाहें तो हम उसको क्या लिखेंगे x और l लिखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 45 लिखने के लिए पहले 40 लिखेंगे और फिर b लिखेंगे 5। तो 40 के लिए हो गया xl और 5 के लिए हो गया b। मतलब 45 को अगर हमको लिखना हो रोमन न्यूमरल्स में तो हम उसको लिखेंगे xlb। ठीक है, यानी 45 लिखने के लिए हम लोग तो कुछ और उसकी भी जरूरत पड़ रही है, जो बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट जगह से सॉफ्टवेयर में 10 मिनट हो गया पूरा यानी कि और एक नंबर 5th जो रूल है उसको भी समझ लेते हैं। ये 5th रूल कहता है कि इफ ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स। ठीक है, दो बड़े-बड़े वैल्यू वाले न्यूमरल्स के बीच में अगर एक छोटा न्यूमरल आ जाए तो हम क्या करेंगे उसके बीच में? तो उसको भी हम लोग एग्जांपल समझते हैं। ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे ठीक से। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे x i x। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो ग्रेटर वैल्यू है x और x। ये 10 है, इसका भी वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 1 है। तो ये दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में एक हमारा i आ रहा है, तो हम क्या करें? अगर हम आप ध्यान रखिएगा सेकंड रूल को ऑब्जर्व करिएगा तो ये राइट साइड में ग्रेटर
वाले नंबर के राइट में है, तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग तो 10 में +1 कर देना चाहिए था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि फिर इसके राइट में एक ग्रेटर वैल्यू आ गया x। तो अगर थर्ड रूल आप याद करें तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी बड़े वैल्यू के पहले कोई छोटा आ जाता है उसको तो हम माइनस करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसको माइनस करना चाहिए था, 10 माइनस हो। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग अपना फिफ्थ रूल को ध्यान में रखेंगे। और फिफ्थ रूल क्या कहता है, एक बार फिर से देख लीजिए। फिफ्थ रूल कहता है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल टू लार्जर न्यूमरल्स के बीच में प्लेस हो जाए तो उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल फॉलोइंग इट। और ये बात ध्यान रखिएगा, फॉलोइंग इट मतलब जो उसके आगे आ रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब समझिए इसको क्या करना है रूल कि जैसे यहाँ पे xi x है, ये दो बड़े-बड़े न्यूमरल्स के बीच में है, तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे नहीं बल्कि इसको फॉलोइंग इट मतलब जो उसके बाद में आ रहा है न्यूमरल, जो बाद में आया है उसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना? तो क्या हो गया हमारा, ये 10 हो गया। अब इसको हम लोग i को माइनस कर देंगे इस 10 में से 1। तो अब देखिए इसको सॉल्व करें कितना आता है, 10 + 10 20, 20 - 1 19। मतलब ये इसका वैल्यू हो गया 90। ऑलराइट, तो इसी तरह से हम रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी रोमन न्यूमरल्स को आसानी से लिख सकते हैं। एक और बात हम लोग जान लेते हैं जो कि यहाँ मेंशन नहीं बट मैं बता देता हूँ कि अगर किसी भी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर बार को प्लेस कर दिया जाए, ठीक है ना, बार, ध्यान दीजिए, छोटा सा बार है, कोई रोमन न्यूमरल्स ले लिया जाए जैसे b, तो b का वैल्यू क्या आता है 5। लेकिन अगर इसके ऊपर हम एक बार प्लेस कर दें, इस तरह का एक लकीर खींच दे उसके ऊपर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1000 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा इससे, मतलब 5 × 1000 कितना हो जाएगा 5 का। इस बात को याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है बट आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी रोमन न्यूमरल्स के ऊपर हम बार लिखें तो उसका वैल्यू 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये कि अगर आपको 10,000 लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि 10,000 के लिए हमारे पास कोई सुटेबल सिंबल नहीं है रोमन न्यूमरल्स में, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 लिखकर उसके ऊपर बार लगाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा 10 × 1000। समझे? तो ये कुछ रूल्स थे 5 और 6 जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को आसानी से रोमन न्यूमरल्स में लिख पाएंगे और किसी रोमन न्यूमरल्स को आप आसानी से अपने हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में वापस से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कुछ इसको और क्लियर समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। कुछ रूल्स फॉलो, जो रूल्स अभी हमने सीखा उनको फॉलो करते हुए कुछ नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा और उन रूल्स को अप्लाई करके उसको रोमन न्यूमरल्स में लिखूंगा। ठीक है? तो जैसे ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, सपोज कीजिए 14, 39, 57, 69, 84, 91, ये कुछ नंबर्स हैं। अब इनको हमको लिखना है रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 4। ऑलराइट, और ये 10 जो है 10 का वैल्यू क्या होता है रोमन न्यूमरल्स में x होता है, जिसकी जगह पर x लिख देंगे। और 4 के लिए तो हम लोग i को 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट रूल में मैंने बताया था आपको कि 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। तो 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 के लिए हम लिख सकते हैं इसके जगह पे 5 - 1, क्योंकि 5 - 1 4 होता है और आपको पता है कि 5 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। और जब हम किसी नंबर को बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा उसको हमको लेफ्ट साइड में लिखना होता है। मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 के लेफ्ट साइड में हमको 1 का वैल्यू मतलब i लिखना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया, तो इसी 4 को अब यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब 14 को आप कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में xib। ऑलराइट, तो सर 49 कैसे लिखिएगा, तो अगेन 39 को ऐसे लिख सकते हैं 30 + 9, और 30 को तो हम लोग आसानी से रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 9 के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको
10 minus 1। अब 30 के लिए 3 टाइम्स x। और आपको पता है कि जब माइनस करना होता है किसी वैल्यू को क्या करते हैं, उस सिंबल से लेफ्ट में लिखते हैं, मतलब 10 के लिए x लिखेंगे और i के लिए 1 के लिए जो i लिखेंगे वो उसके लेफ्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 39। ठीक है, अब उसे 57 को देखते हैं। तो 57 तो सिंपल है, 50 प्लस 7 और 7 के लिए हम लोग लिखेंगे, और 7 के लिए लिखेंगे हम लोग 5 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि हम लोग 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं किसी भी रोमन न्यूमरल्स को, तो ये हमारा चल जाएगा। अब इसको लिखिए 50 के लिए L और 5 के लिए V, और ये 2 टाइम्स 1 के लिए 2 टाइम्स I, तो ये हो गया हमारा 57। ठीक है, ये 69 लिखते हैं। 69 क्या होगा आपका 50 प्लस 10 और 9 के लिए हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे सीखे, तो 9 के लिए क्या करेंगे 10 माइनस 1 है ना, तो 10 माइनस 1। अब इन्हीं सारे वैल्यूज को पुट कर देना है। 50 के लिए L लिखेंगे, 10 के लिए x और 10 माइनस 1 है तो 1 का वैल्यू पहले लिखेंगे और 10 का वैल्यू बाद। हो गया 69। ऑलराइट, तो इसी तरह से आप 80 को भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 50 60 70 80 एंड 4 हमने यहाँ पे भी निकाला था, अभी आपको देख सकते हैं IV। तो बार बार हम लोग उसको नहीं निकाल रहे हैं। और 91 की तो सिंपल है, लेकिन 91 यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, 91 अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। अब हमको कोई दूसरा सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो आप देखिए 90 से जस्ट ग्रेटर जो होता है वो होता है 100, और 100 के लिए हमारे पास एक सिंबल है C, तो उसको यूज करके हम लोग 91 को रोमन न्यूमरल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको 100 माइनस 10 अब प्लस 1। अब 100 के लिए हमारा जो सिंबल है वो है C, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 10 हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ये 10 का जो सिंबल है उसको हम लोग C के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और ये जो 1 है ऐड कर रहे हैं तो इसको राइट साइड में लिखेंगे, मतलब हो गया XCI। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कोई भी नंबर है हम लोग इसको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, और कुछ रोमन न्यूमरल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आपके असाइनमेंट्स सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ऑलराइट, और अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, आपका आंसर उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।